بارش ہوتی تو مالکن مجھے کمرے میں بلا لیتی، وجہ پوچھتا تو بٹوا نکال کر پیسے پکڑاتی اور بازار بھیج دیتی۔ میں تیز بارش میں سائیکل نکالتا اور مالکن کے کام کو نکل جاتا۔ ایک رات اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ مالکن دودھ کا گلاس پلا کر کہنے لگی، چل سو جا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے مالکن۔ میں ترکی کے ایک گاؤں میں ایک عورت کے گھر ملازمت کرتا تھا۔ میری مالکن کا گاؤں میں بڑا سا گھر تھا، صحن کافی بڑا اور کچا بنا ہوا تھا۔ میں سائیکل پر ہی مالکن کے کام کیا کرتا تھا۔ گھر کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کراتی تھی اور باہر کا سودا لانا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ لیکن میری مالکن کے مجھے ایک بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ اکیلے گھر میں رہتی تھی اور جیسے ہی رات ہوتی 11 بجے کے بعد مجھے کہتی کہ اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ یہ بات مجھے بہت حیران کرتی تھی کہ میں بھلا کمرے سے باہر کیوں نہ نکلوں۔ بہرحال مالکن مجھے پیسے بہت اچھے دے رہی تھی اور اسی لیے میں نے اختلاف نہیں کیا۔ میں یہاں پر ترکی میں پیسہ ہی تو کمانے کے لیے آیا تھا۔ میری منگنی اپنے چچا صاحب کے گھر ہوئی تھی اور چچا کہنے لگے کہ 2 سال کے اندر اگر 10 لاکھ کی رقم جمع نہ کی تو اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دوں گا، کیونکہ میں شروع ہی سے کچھ سست مزاج کا انسان تھا۔ محنت مشقت والے کاموں سے میری جان جاتی تھی۔ اسی لیے اماں کا زیور بیچ کر ترکی آ گیا کہ تھوڑے بہت کام کر کے بھی اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ پہلے پہل تو بڑی مشکل سے مجھے نوکری ملی اور پیسے بھی کم تھے، لیکن پھر اس مالکن نے مجھے ملازمت پر رکھ لیا۔ نہ میں تعلیم یافتہ تھا اور نہ ہی محنتی، اسی لیے مجھے مالکن کا کام اچھا لگا۔ گھر کا تھوڑا بہت کام تھا یا بازار کا ایک آدھا چکر اور تنخواہ بھی معقول تھی، لیکن اپنی مالکن کی کچھ باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی تھی۔ مالکن کا شوہر بیرون ملک میں رہتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ واپس کب آئیں گے تو کہنے لگی 5 سال سے پہلے واپس نہیں آیا اور ابھی تو گیا ہے چند ماہ پہلے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری مالکن زیادہ عمر کی بھی نہ تھی، یہی کوئی 35 کے لگ بھگ تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے کچھ نفسیاتی سی لگتی تھی۔ رات کو 11 بجے جب میں کوارٹر میں چلا جاتا تو وہ باہر سے تالا لگا دیتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ میرے کوارٹر کا تالا کیوں لگا دیتی ہے۔ پھر مجھے یہ خیال آنے لگا کہ شاید اسے یہ ڈر ہے کہ وہ اکیلی ہوتی ہے، اسی لیے اپنے تحفظ کا احساس اسے رہتا ہوگا۔ لیکن ایک بار تو سر شام ہی میری مالکن نے مجھے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ میں نے جب مالکن سے وجہ پوچھی تو ان کی رنگت فاق پڑ چکی تھی۔ کہنے لگی، دیکھ نہیں رہے آسمان پر کالے بادل کتنے گہرے ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک نظر صحن میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل تو واقعی گہرے ہو رہے تھے، لیکن اس سے میرا اپنے کمرے میں جانے کا بھلا کیا تعلق تھا؟ میں نے کہا، مالکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہنے لگی، ابھی بارش ہو جائے گی۔ میں نے کہا، تو ہونے دیں بارش ہونے سے میں کمرے میں کیوں بند ہو جاؤں؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی، لیکن بے حد پریشان تھی۔ بار بار آسمان کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہیں چکر کاٹی جا رہی تھی، اپنی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی، چہرے سے بری طرح سے بدحواس لگ رہی تھی۔ مجھے اپنی مالکن کی پریشانی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کو بارش سے کیا مسئلہ تھا۔ مجھے ان کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی اور پھر بارش کی رفتار تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے بارش تیز ہو رہی تھی مالکن کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ اس وقت مجھے کوئی بھی خاص کام نہ تھا۔ میں نے سوچا چلو میں بارش میں نہا لوں گا۔ جیسے ہی میں صحن کے کونے میں نہانے کے لیے کھڑا ہوا تو میری مالکن مجھے کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا، مالکن بارش ہو رہی ہے اور بارش میں تو سبھی یوں ہی نہاتے ہیں، اب آپ کو خوف آتا ہے تو آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ مالکن کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ ادھر آؤ۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ یہ بات بھی میرے لیے کافی حیران کن تھی، کیونکہ جب سے میں ان کے گھر کام کر رہا تھا انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا نہیں کہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا مالکن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنی الماری سے پیسے نکالنے لگی، مجھے پیسے تھمائے اور کہنے لگی کہ جاؤ گھر کا سودا صرف لے کر آؤ۔ میں نے کہا، ابھی؟ صبح تو لایا تھا، میں نے ہر چیز پہلے ہی لا کر رکھ دی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی کمی ہوتی۔ میں نے کہا، آپ کیا لے کر آؤں؟ مالکن کہنے لگی، ایسا کرو 1 ہفتے کا راشن اور لے آؤ۔ میں نے کہا، ابھی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اس میں تو سارا سامان بھیگ جائے گا۔ وہ کہنے لگی، میرے پیسوں کا سامان بھیگے گا نا، تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ تم بس جاؤ یہاں سے۔ مجھے تو اس عورت کی عقل پر حیرت ہو رہی تھی۔ اتنی تیز طوفانی بارش میں وہ مجھے راشن لانے کے لیے کہہ رہی تھی، اس میں تو دال چاول آٹا سب کچھ برباد ہو جاتا۔ میں نے کہا، مالکن آپ کیوں پورے سامان کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں؟ اتنی تیز بارش میں سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے ایک پلاسٹک کا مضبوط شاپر دیا، کہنے لگی، یہ پکڑو اور اس میں سارا سامان ڈال لینا، جلدی جاؤ، نکلو میرے گھر سے باہر اور 2 گھنٹے سے پہلے واپس مت لوٹنا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مالکن مجھے باہر نکالنا چاہتی ہیں۔
मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने पैसे लिए, जेब में डाल लिए और बाहर चला गया। बारिश का मैं वैसे भी शौकीन था। उसकी साइकिल पर बैठकर बारिश का मजा लेता रहा और राशन की दुकान पर पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा, दाल, चावल, आटा जो कुछ भी है वो सब दे दो। जब तक सामान पूरा करो मैं आता हूँ, और मुझे कोई जल्दी नहीं है, बेशक से 2 घंटे लगाकर सामान देना। मेरी बात में मुझे हैरत से देखने लगा और मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन मुझे बारिश बड़ी पसंद थी। गली में बच्चे नहा रहे थे, साथ में फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। पूरे 2-2.5 घंटे के बाद जब बारिश काफी हद तक कम हो गई, तभी मैं सामान लेकर वापस आया था। सामान भी बच गया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर परेशान हो गया था। मालकन सहन में बैठी रो रही थी। मुझे तो उनके रोने की वजह ही समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मालकन मुझे देखकर फौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखें बेतहाशा सूजी हुई थी, जैसे पिछले 2-3 घंटों से वो बस रोए ही जा रही हूँ। मैं भी परेशान सा हो गया। मैंने कहा, मालकन सब खैरियत तो है? कहने लगी, हाँ सब खैर है, जाओ ये सामान किचन में रखो, और मैंने खाना बना दिया है, किचन में ही रखा है, तुम खा लेना। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत होती थी। मेरी मालकन बड़ी अजीब थी। ना तो वो किसी मोहल्लेदार के घर जाकर उनसे मिलती थी, ना ही किसी मोहल्लेदार औरत को अपने घर आने देती थी। शौहर वैसे भी बैरून मुल्क में होता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मालकन अकेली घर में तन्हा रहकर थक नहीं जाती। उसे तो चाहिए था कि आस पड़ोस में दोस्तियां पालती, लोगों से मिलती जुलती, लेकिन नहीं, कोई भी मालकन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ जाता तो मालकन उसके साथ ऐसा सख्त रवैया अख्तियार करती कि दोबारा वो आने का नाम न लेता। ये मानसून का मौसम था, इसीलिए 2 महीने तो बरसात लाजमी होनी थी। लेकिन मुझे अपनी मालकन की ये बात बहुत ही हैरान कुन लगती थी। जब भी आसमान पर बादल छाने लगते, अभी बारिश हो जाएगी, और वो मुझे पैसे देती और कहती कि जाओ घर से बाहर निकलो, सामान ले आओ। कभी कहती फलां गोश्त वाले से गोश्त लेकर आना। वो ऐसी जगह का मुझे बताती जो कोसों दूर होता, जहां से वापसी पर मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते। मैं घर आता तो वो रो रही होती। ना मुझे उसके रोने की समझ आती थी और ना ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। रोजाना बारिश में नहा नहा कर अब मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींकें आ रही थी, बुखार भी हो रहा था। मालकन ने जब बारिश होते देखी तो कहने लगी, जाकर सामान ले आ। मैंने कहा, मालकन मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी घर में अच्छा खासा राशन मौजूद है, महीना भर भी अगर राशन ना आए तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई थी। मेरी आंखों और मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी, ऐसा करो, मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ, साथ में बुखार की गोली भी, वो खा लो और आराम कर लो। मुझे बड़ी हैरत हुई, ऐसी मेहरबानी पहले तो मालकन ने मुझ पर कभी नहीं की थी। वो सिर्फ मुझे 1 कप चाय ही देती थी और इसमें भी दूध से ज्यादा पानी होता था, और अब दूध का पूरा गिलास। मालकन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी, साथ में एक और भी दवा थी, और वो शायद नींद की गोली थी। जैसे ही मैंने दूध के साथ वो दवा ली, कहने लगी, चलो ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। ये सुनकर तो मेरी बुरी तरह से मैं चौंक गया। मैंने कहा, मालकन आप क्या कह रही हैं? मैं अभी आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बारिशों के होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है, और जिस कमरे में तुम सोते हो वहां छत भी बहती है। बीमार पड़ जाओगे तो फिर कौन तुम्हें संभालेगा? मैं तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए तुम मेरे कमरे में सो जाओ। घर में और भी कमरे हैं, मैं वहां लेट जाऊंगी। मैंने कहा, मालकन आप मुझे किसी दूसरे कमरे का बोल देती, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे ये बात बहुत ही गैर मुनासिब सी लग रही है, और अपनी मालकन की इस बात पर हैरत भी थी कि वो मुझे अपना कमरा क्यों दे रही थी, जबकि घर में और भी कमरे खाली थे। अगर इन्हें मेरा इतना ही एहसास था तो मुझे किसी दूसरे कमरे का भी तो कह सकती थी, अपना ही कमरा क्यों? मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगी और कहने लगी, जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ, इनकार भी नहीं कर सकता था। एक तो बुखार था और दूसरा शायद नींद की दवाई का असर मुझ पर होने लगा था। मैं मालकन के कमरे में गया और बेड पर जाकर लेट गया। 5 मिनट लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्दों से चूर था। शायद मुझे अभी भी बुखार था। मैं मुश्किल ही में उठकर बैठा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी तो मेरे होश उड़ के रह गए। सामने मालकन खड़ी हुई थी, अपनी अलमारी खोले न जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि उठकर कमरे से बाहर निकल जाऊं। जाहिर है ये मालकन का कमरा था और उनकी 100 जरूरियात की चीजें यहाँ मौजूद थी। न जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों सुलाया था। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन मेरा सर अभी भी बुरी तरह से
चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने आई थी। जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकन मुझ पर इतनी मेहरबान किस लिए है। न जाने क्यों मुझे गड़बड़ का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो एक तुर्की औरत थी भी बड़ी खूबसूरत। बेशक 35 के लगभग थी, लेकिन जवान जहान थी। मुझे उसके कमरे में रहना उठना बैठना बिल्कुल भी गैर मुनासिब सी बात लग रही थी। मैंने कहा, नहीं मालकन, मैं यही ठीक हूँ, मैं चलता हूँ अपने क्वार्टर में। जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई पानी टपकने से मेरी चारपाई भीग गई थी और अभी मैं गीले बिस्तर पर लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से था, इसलिए कपकपी सी तारी होने लगी। मालकन मेरे लिए खुद नाश्ता बनाकर लाई। जब मुझे कांपते हुए देखा तो कहने लगी, तुमने अपनी जिद का नतीजा देख लिया। कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। ये कहकर उन्होंने ट्रे एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़कर सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सकें। उस वक्त मैं बुखार की वजह से इस कदर नकाहत का शिकार था कि उनके सहारे से ही उठा, लेकिन इसके बाद मैंने उनका हाथ पीछे कर दिया। चलते हुए मालकन के कमरे में ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार टूट चुका था, तबीयत भी काफ़ी हशाश बशाश थी। पूरा दिन मालकन ने मेरी अच्छी खिदमत कर डाली थी। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लगा था कि आप बहुत सख्त मिजाज किस्म की हैं। ये सुनकर उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, फिर किसी गहरी सोच में चली गई। कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों में जमाशुदा आंसू साफ किए थे। फौरन से कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर मामला क्या है। आज रात फिर बारिश तेज हुई थी। जैसे ही बारिश तेज हुई, मालकन की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, न जाने क्यों ये रोज बारिश हो जाती है। कभी ये मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकन, बारिश आपको क्या कहती है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये बारिश मेरी जान के दुश्मन है। मैं हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली। मैंने कहा, मालकन, मैं ये क्यों खाऊं? अब तो मुझे बुखार नहीं है। कहने लगी, बस तुम ये खा लो और मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ और अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई, बस मालकन को दिखाने के लिए ऐसा किया कि जैसे गोली मैंने अपने मुंह में डाली। लेकिन मैंने हाथ से वो गोली पीछे फेंक दी थी, जो कि मालकन की नजर में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास पिया और यूं करने लगा कि जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सेहन में खुलती थी, हालांकि मालकन का कमरा अंदर की जानिब था। वहां से सेहन साफ नजर नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकन को बारिश में क्या मसला होता है। वो क्यों मुझे बाहर भेज देती हैं और जब मैं आता हूं तो रो रही होती हैं। मैंने चुपके से अपने कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे सेहन में ही कोई मसला है, क्योंकि जब बारिश होती थी तो मेरी मालकन सेहन में बार बार देखती रहती थी। अभी भी बारिश हो रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि मालकन सेहन में जरूर आएंगी। अब यही सोच रहा था जब मालकन सेहन में आई। सेहन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था और एक कोने की जानिब जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हो रही थी कि ये क्यों मिट्टी इकट्ठी करेंगी। मिट्टी उठा उठाकर वो दूसरे कोने की जानिब लाती और उसके ऊपर डालने लगती और उसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे इस मिट्टी को वो छुपाने की कोशिश कर रही हैं, या मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो बारिश की वजह से उन्हें ये खौफ था कि कहीं वो मिट्टी वहां से हटेगी तो अंदर की चीज वाज़ेह ना हो जाए। शायद मालकन का कोई जेवर या पैसा उसके अंदर है जो मालकन छुपाना चाहती है, तभी मुझे बाहर भेज देती। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से वापस आता था तो मालकन के कपड़ों को मिट्टी लगी होती थी और वो रो रही होती थी और एक कोने में वो मिट्टी डाल रही थी। वो हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका होता था। पहले कभी तो मैंने इस बात पर तवज्जो ही नहीं दी थी, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद मालकन यही करती रही और फिर रोने लगी। रोते रोते वो अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और उस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि उसमें तो मेरी मालकन का शौहर बैरून मुल्क में नहीं था, बल्कि 2 साल पहले ही मेरी मालकन और मालिक के झगड़े की सूरत में मालकन ने अपने शौहर को गुस्से में आकर चाकू से कत्ल कर डाला था। लेकिन उसे खौफ हुआ कि पुलिस को पता चल गया तो उस पर फांसी की सजा हो जाएगी। उसे अपने शौहर को इसी कच्चे सेहन में ही दफना दिया, लेकिन चूंकि वो औरत है इसीलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई थी। इसीलिए जब भी बारिश होती थी उसे ये डर रहता था कि कहीं उसके शौहर का कफन और उसकी मुर्दा वजूद में बचे हुए हिस्से कोई देख ना ले।
جو کہ میں دیکھ چکا تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹا تو مالکن میرے پیچھے کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر رونے لگی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی میرے اس راز کو راز رہنے دو، میں تمہیں بہت پیسہ دوں گی۔ میں نے مالکن کی اس بات کو کسی کو بھی نہیں بتایا اور بدلے میں وہ واقعی مجھے بہت پیسہ دینے لگی۔ جب پورے 10 لاکھ میرے پاس جمع ہو گئے تو پھر میں واپس پاکستان آ گیا۔ وہ راز اب بھی میرے سینے میں دفن ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تھا غصے میں آ کر غلطی میں کیا تھا، اور اس پر وہ روتی بھی بہت تھی اور پچھتاتی بھی بہت تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہوتا ہے۔